नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो आप में से कई सारे लोगों ने अलग अलग यूट्यूबर्स को ये कहते हुए सुना होगा कि मिडिल ईस्ट में जो भी आतंकवादी संगठन है उन लोगों को खड़ा करने वाला और उनको बड़ा करने वाला और कोई नहीं बल्कि केनियन बॉर्न यूएस प्रेसिडेंट बराक हुसैन ओबामा था। अब इस बात को लेकर कई सारे यूट्यूबर्स, चाहे हिंदी मीडिया में हो या फिर इंग्लिश मीडिया में हो, कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स भी हैं जिन्होंने इसके ऊपर बात की है और ये बताया है कि बराक ओबामा ने इन लोगों को ना ही सिर्फ खड़ा किया है बल्कि उनको बड़ा करने में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब जो अलग अलग चीजों का हम लोग आकलन करते थे, उस आकलन के निष्कर्ष के रूप में हम ये बात कॉन्स्टेंटली बता रहे थे कि ये जो अलग अलग आतंकवादी संगठन हैं, चाहे वो अलकायदा हो या आईसिस हो, उन लोगों को बड़ा करने के लिए, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यूएसए प्रेसिडेंट बराक हुसैन ओबामा जिम्मेदार है। लेकिन जब ये बात किसी ऐसे ऑफिशियल के पास जाती है जो कि वहां पर यूएस में कांग्रेस में रहा है या रही है काफी लंबे अरसे तक, और वो साथ ही में आर्मी में भी उसने अपना रोल प्ले किया है, तब ये चीज कंफर्म हो जाती है कि जिसके ऊपर हम लोग सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पर ये आरोप लगा रहे थे कि वो आईसिस को और अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट कर रहा है, उनको बड़ा कर रहा है, वो कंफर्म हो जाता है, वो अश्योर हो जाता है। उसी प्रकार की बात कल तुलसी गैबर्ट, जो कि ओरिजिनली कर्नल तुलसी गैबर्ट है, उसने अपने कंफर्मेशन हियरिंग के दौरान कही, जहां पर उसने ये बताया कि अलकायदा जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करने के लिए बराक हुसैन ओबामा ने अपना रोल प्ले किया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा कल के अपने कंफर्मेशन हियरिंग में ओबामा और इन आतंकवादियों की लिंक को एक्सपोज करते हुए। Senator, as someone who enlisted in the military specifically because of Al-Qaeda's terrorist attack on 9/11 and committing myself and my life to doing what I could to defeat these terrorists, it was shocking and a betrayal to me and every person who was killed on 9/11, their families and my brothers and sisters in uniform. When as a member of Congress, I learned about President Obama's dual programs that he had begun really to overthrow the regime of Syria, and being willing to, through the CIA's Timber Sycamore program that has now been made public, of working with and arming and equipping Al-Qaeda in an effort to overthrow that regime, starting yet another regime change war in the Middle East. DoD Train and Equip program, again, begun under President Obama, is widely been known, looked at, and studied, that ultimately resulted in over $500 million being used to train who they called moderate rebels, but were actually fighters working with and aligned with Al-Qaeda's affiliate on the ground in Syria, all to move forward with their regime change and not acknowledging what was obvious at the time and what has unfortunately borne true, which was that a regime change war in Syria, much like the regime change wars in Iraq, the toppling of Gaddafi and Mubarak, while these are all dictators, would likely result in the rise of Islamist extremists like Al-Qaeda taking power. I shed no tears for the fall of the Assad regime, but today we have an Islamist extremist who is now in charge of Syria, as I said, who danced on the streets to celebrate the 9/11 attack, who ruled over Idlib with an Islamist extremist governance, and who has already begun to persecute and kill and arrest religious minorities like Christians in Syria. I understand. Why that should be acceptable to anyone is beyond me. It shouldn't is be. certainly And not in our I case. understand, I appreciate your answer, and thank you. My concern has to do with the tendency to repeat Russian and Syrian, and even in some cases, I think we'll get into in the closed session, Iranian information, and to discount what comes from our intelligence community. Senator, every American deserves to know that people in our own government were providing support to our sworn enemy, Al-Qaeda. That should not be acceptable by anyone. तो जैसे कि आपने सुना, एक फॉर्मर कांग्रेस वुमन और साथ ही में एक फॉर्मर आर्मी ऑफिशियल जिसने ये कंफर्म किया कि बराक हुसैन ओबामा वाज रिस्पांसिबल फॉर सपोर्टिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अल-कायदा एंड अदर्स इन द मिडिल ईस्ट। तो इसी प्रकार से ये स्थापित हो जाता है कि यूएसए के ही लोग इन इस्लामिस्ट उग्रवादी और आतंकवादी संगठनों को खड़ा करने और बड़ा करने के लिए जिम्मेदार पाए गए। तो इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि यूएसए ही इसके पीछे जिम्मेदार है, जो भी मिडिल ईस्ट में हाल में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और उसमें भी मुख्यतः एक व्यक्ति बराक हुसैन ओबामा। क्या आप मानते हैं जो तुलसी गैबर्ट ने हाल में कहा, या फिर आपकी सोच कुछ और है? ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें।
अगली खबर में पन्नू के केस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशंस और अपडेट मिलते रहें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।